اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم۔ حج، قرآن مجید نے حج کے حوالے سے یوں تذکرہ کیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور صاحب استطاعت پر اللہ سبحانہ و تعالی کے گھر کا حج کرنا لازم ہے۔ اب حج کے لیے بنیادی طور پر مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر حج فرض نہیں۔ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، عاقل بالغ ہو، بچوں پر حج فرض نہیں۔ صاحب عقل ہو، کوئی دیوانہ ہے، مجنوں ہے، اس پر بھی حج فرض نہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ صاحب استطاعت ہو، یعنی حج مکہ المکرمہ میں ادا ہوتا ہے، صرف مکہ المکرمہ میں، تو وہ جہاں بھی رہتا ہے مکہ المکرمہ میں آنے جانے کا زاد راہ ہو اس کے پاس۔ دوسرا، راستہ پرامن ہو۔ تیسرا، صحت مند ہو، بیمار پر نہیں۔ اب دوسری طرف آ جائیے کہ حج جب کرنے انسان چلا ہے تو حج کے فرائض کون سے ہیں، حج کے فرائض کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں؟ تو یاد رکھ لیں کہ حج کے فرائض جو ہیں انہیں ہم ارکان سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فرض احرام باندھنا، احرام باندھنا یہ حج کا فرض ہے۔ وقوف عرفات، 9 ذی الحجہ کے دن غروب آفتاب تک میدان عرفات میں سٹے کرنا، ٹھہرنا، یہ فرض ہے۔ اور تیسرا، طواف زیارت کرنا، یہ 3 چیزیں فرض ہیں۔ اور چوتھی چیز، ان تینوں فرائض کو مقررہ مقامات اور مقررہ اوقات میں ترتیب سے ادا کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ نقطہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ہے۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کے دن میدان عرفات میں غروب آفتاب تک سٹے کرنا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی غروب آفتاب سے پہلے 9 ذی الحجہ کے دن میدان عرفات میں وہ داخل ہو گیا ہے تو اب یہ حج میں شامل ہو گیا۔ اب اس کا حج کون ہوگا؟ یعنی 9 ذی الحجہ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور اس میں حج کا سب سے بڑا رکن جسے رکن اعظم کہا جاتا ہے وہ وقوف عرفات ہے۔ اگرچہ طواف کرنا فرض ہے، احرام باندھنا پہلا فرض حج کا، احرام میں ہونا، وقوف عرفات اور طواف زیارت، یہ تینوں چیزیں۔ اور پھر ان کو ان کے مقررہ اوقات میں، یعنی میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کے دن، کوئی اور ڈیٹ نہیں۔ اسی طرح غروب آفتاب تک، ذو الحجہ کا مہینہ، یعنی یہ بنیادی چیزیں اسے ذہن میں رکھیں۔ پھر اس کے علاوہ مزدلفہ میں ٹھہرنا، جمرات
को कंकरियां मारना, जिसे रमी कहते हैं, शैतान को कंकरियां मारना। हज किरान या हज तमत्ता की नियत है तो कुर्बानी का करना, सर के बाल का कटवाना या मुंडवाना, हलक या कसर जिसे कहते हैं, सफा और मरवा में साई करना, और खसूसन सफा और मरवा में तवाफ जियारत के बाद दौड़ना। बाहर से जो लोग आते हैं मक्कातुल मुकरमा के बाहर से आने वालों के लिए तवाफ विदा करना, जिसे तवाफ रुखसत भी कहते हैं, एंड पर जाने से पहले एक दफा अलविदाई तौर पर तवाफ करना, तवाफ रुखसत या तवाफ विदा इसे कहते हैं। तवाफ जियारत के 7 चक्कर पूरे करना, ये सब वाजिबात हैं। अगर इनमें से कोई एक वाजिब भी तर्क हो जाए तो दम दिया जाएगा, यानी कुर्बानी की जाएगी। लेकिन अगर कोई फर्ज अगर रह गया है तो फिर वो हज सिरे से होगा ही। सो हज के 3 अक़साम है, उसे भी ज़हन नशीन कर लीजिए। हज की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम है, अहले इल्म ने उसे 3 पहलुओं से बयान किया है। एक हज को हम हज इफराद कहते हैं, हज इफराद, हज किरान और हज तमत्तो। अगर हज इफराद है तो इसका मतलब है मीकात से एहराम बांधना। मीकात वो हदूद हैं कि जब हज या उम्रे के लिए कोई जाता है तो मीकात से पहले पहले उसको एहराम में होना जरूरी है। मसलन ये पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, ये जो इंडियंस हैं, इन सब के लिए करीब करीब यलमलम की पहाड़ी बड़ी मारूफ जगह यलमलम, तो यहां से एहराम में होना हाजी के लिए या उम्रा करने वाले के लिए एहराम को बांधना, एहराम को पहनना ये जरूरी हो जाता है। ये मीकात कहलाता है, यानी वो हदूद जहां से एहराम पहन कर दाखिल होना जरूरी है, एहराम में होना जरूरी है। तो हज इफराद ये है कि मीकात से उसने हज के लिए, सिर्फ हज के लिए हज की नीयत से एहराम को बांधा। अब जब ये मक्कातुल मुकरमा ये शख्स पहुंचा तो इसने वहां उम्रा नहीं किया और ये 10 दिन रमी तक शैतान को कंकरियां मारने तक इसने एहराम में ही रहना है। तो 10 ज़िलहज्जा को रमी करने के बाद ये एहराम को खोले। इस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, यानी हज इफराद जो करेगा, हज इफराद की जो नियत करके जा रहा है, हज इफराद की नियत से जिसने एहराम पहना है, तो जब वो मक्कातुल मुकरमा में दाखिल हुआ उसने मनासिक के हज अदा किए, 10 ज़िलहज्जा को रमी की, शैतान को कंकरियां मार ली, तो अब ये एहराम खोल देगा। इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर कुर्बानी करेगा तो वो मुस्तहब होगा, लेकिन इस पर कुर्बानी है नहीं। अच्छा, इसने उम्रा भी नहीं करना, इसने खालिसतन नियत की है किस चीज की? हज की। अब हज किरान क्या है? हज किरान ये है कि मिकात से हज और उम्रे दोनों की नियत से एहराम को बांधना। अब जब ये शख्स मक्कातुल मुकरमा में पहुंचा है तो इसने पहले उम्रा किया है। उम्रा करने के बाद इसने एहराम उतारा नहीं है, ये एहराम में ही है और ये 10 ज़ुल्हज्जा तक एहराम में रहेगा। अब इसने रमी की है 10 ज़ुल्हज्जा को, तो उसके बाद ये कुर्बानी करेगा। कुर्बानी इस पर वाजिब है, हज किरान वाले पर कुर्बानी करना वाजिब है। जैसे ये कुर्बानी करेगा तो फिर ये एहराम से बाहर आ जाएगा। अलबत्ता तीसरी जो किस्म है जो बिलमू हुजाज करते हैं हज, वो हज तमत्तो है।
हज तमत्ता ये है कि मिकात से हज और उम्रे दोनों की नीयत से एहराम बांधना। अब ये शख्स जब मक्कातुल मुकरमा में पहुंचा है, इसने जाते साथ ही उम्रा किया है और उम्रा अदा करने के बाद इसने वहां एहराम को खोल दिया है। अब जो ये एहराम की हालत में जो पाबंदियां थी अब उस पर खत्म हो गई हैं, क्योंकि इसने एहराम को खोल दिया, इसने हलक या कसर करा लिया है। अब ये एहराम से बात, अब जब हज के दिन शुरू होंगे तो अब ये शख्स दोबारा एहराम बांधेगा। यानी हज अब कहां से इसने दोबारा एहराम बांधना, और मक्का में रहकर, अगरचे ये बाहर से आया हुआ है, मक्का ही से दोबारा एहराम 8 जुल्हज्जा को ये दोबारा एहराम बांधेगा हज के लिए। अब ये 8, 9, 10 ये हज के लिए ये एहराम में है, और फिर उसके बाद उसने कुर्बानी देनी है। इस पर कुर्बानी वाजिब है, इस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अब जब ये कुर्बानी दे देगा, रमी कर चुका होगा, तो अब ये एहराम खोल देगा। इसमें से खुलासा ये निकला कि हज इफराद खालिसतन हज की नीयत से मिकात से एहराम बांधे और हज करने के बाद 10 जिल्हज्जा को रमी करने के बाद एहराम को खोल देगा। इसका हज हो गया। हज किरान वाले हज और उम्रे दोनों की नियत करेंगे मिकात से और एहराम बांधेंगे, और जाकर उम्रा किया, फिर एहराम को खोला नहीं है, एहराम में ही रहे, एहराम की पाबंदियां उन पर मुसलसल जारी है। अब उन्होंने रमी की, रमी करने के बाद शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी देना उन पर वाजिब है। अब कुर्बानी वो देंगे, उसके बाद एहराम को खोल देंगे। हाँ, हज तमत्तो ये सबसे आसान तरीका है। मिकात से हज और उम्रे दोनों की नियत के साथ एहराम को बांधना, जाते साथ ही उम्रा करना, उम्रा करके एहराम को खोल देना। फिर हज के जब अयाम शुरू होंगे तो 8 जिल्हज्जा से फिर से दोबारा वो एहराम को बांधेगा, और हज को अदा करने के बाद रमी करने और कुर्बानी देना इस पर वाजिब है। कुर्बानी करने के बाद एहराम को खोल देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।